Welcome back to my channel. My name is Prachi Sharma, and in today's session, we are working on the basics of chemistry. That means, as you start your 11th grade, these topics that we are working on today and in the next session are the ABCs of chemistry. So, after understanding the concept, it's important that they actually come to you as a natural instinct instead of trying to remember them every time. So you have to practice these concepts so many times that they come out naturally. The topic that we are working on today is based on sulfuric acid, sulfurous acid. How do you get the ions from these? In school, probably they won't be teaching you the details of this, and they'll provide you a big chart that you have to memorize this chart with a lot of acids, their ions, their formulas. I do not recommend memorizing the whole chart. I recommend understanding the concept behind that chart. So, without wasting any time, let's get started with today's session. Alright students, so let's get started with the session. Now, let's start with the basic understanding. So, can you think of the formula for nitric acid? Students, मेरे साथ साथ आप बोलते चलेंगे, ठीक है? When I'm asking something, आप उसका आंसर verbally बोलिए, okay? So, nitric acid का formula क्या होता है? Nitric acid का formula होता है HNO3, ठीक है? Then फर्स्ट थिंग दैट विल स्टार्ट विद टुडे इज, जब भी आपके पास एक एसिड कैसे, जिसकी वॉइस में एक साउंड आए, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक, सो एक साउंड, जब भी किसी एसिड में एक साउंड आएगी, दैट पर्टिकुलर एसिड विल मेक 8 आयन. सो 8 आयन, 8 मतलब क्या हुआ? For example, nitric acid will make nitrate ion. 8 ion, sound 8 की आनी चाहिए, ठीक है? Similarly, sulfuric acid will make sulfate ion. Phosphoric acid will make phosphate ion. 8 sound आनी चाहिए. So that means whenever we have the sound ik acid, you'll get 8 ion. ठीक है? अब हमारा ion बनेगा कैसे? So whenever you have an acid like this, sulfuric acid है आपके पास, whatever replaceable hydrogen atoms we have, hydrogen atoms replaceable मैं आपको बाद में बताऊंगी कैसे figure out करते हैं. For now, इसमें एक हाइड्रोजन है, एक ही replaceable हाइड्रोजन है. So आप हाइड्रोजन atoms को replace कर दीजिए, remove कर दीजिए, और जितने हाइड्रोजन हैं उतना नेगेटिव चार्ज बचे हुए क्वांटिटी पे लगा दीजिए. सिंपल. So that means if you have one single hydrogen and you subtract that hydrogen from the formula, so you will be left with NO3, right? NO3 के टॉप पे -1 लगा दीजिए. So -1, that's it. ठीक है? So ये आपका आयन भी बन गया और आपको नाम भी समझ में आ गया, that is nitrate ion. So ये आपका आयन है and the name is nitrate ion. तो अभी हमने क्या समझा, अब आप लिख लीजिए. आपने समझी दो बातें. सबसे पहले, जब भी हमारे पास एक एसिड होगा, सो आई विल राइट इट फॉर यू, जब भी हमारे पास एक एसिड होगा, दैट विल गिव अस 8 आयन. पहली चीज. सेकेंड चीज हमने ये समझी कि वट एवर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो आप रिमूव करेंगे, that will become the negative charge on the left out. So left out में आपके पास जो भी बचेगा उसके ऊपर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो आपने सब्ट्रैक्ट किए हैं. So let me write, subtract number of hydrogen that will put negative charge on the left out. So इससे आपका आयन का फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक है? अब सल्फ्यूरिक एसिड का आप ट्राई करिए. So सल्फ्यूरिक एसिड, स्टूडेंट्स अभी ये सुनने में बहुत इजी लग रहा होगा, मैंने तो पता है नाइट्रिक एसिड का नाइट्रेट आयन बनता है, पता है. स्टूडेंट्स ये इजी है, ये एसिड्स के साथ हम प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं ताकि आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को कर पाए. सो प्लीज कॉन्सेप्ट को समझिए इजी क्वेश्चन के साथ.
सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हुआ, से इट आउट लाउड, क्या फॉर्मूला हुआ? H2SO4, करेक्ट। अब कॉन्सेप्ट लगाते हैं। कॉन्सेप्ट है कि एक एसिड है तो 8 आयन बनेगा। तो नाम क्या हो गया आयन का? सबसे पहले नाम बता दीजिए, नाम क्या हो गया? सल्फेट आयन। और फॉर्मूला कैसे बनेगा? जितने हाइड्रोजन्स हैं उतना नेगेटिव चार्ज लगा दीजिए। सो बचा क्या? सबसे पहले SO4 बचा। कितने हाइड्रोजन्स है? 2 हाइड्रोजन्स है, सो 2 नेगेटिव। ये आपका फॉर्मूला आ गया। समझ में आया? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। लेट्स ट्राई फॉस्फोरिक एसिड। जिसे पता है दे कैन कंटिन्यू अहेड, जिन्हें मेरे साथ समझना है वो समझिए। मैं आपको फॉर्मूला देती हूं। सबसे पहले फॉर्मूला इज H3PO4, ठीक है। जो स्टूडेंट को समझ में आ रहा है वो जल्दी आगे कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो थोड़ा सा आगे कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को मेरे साथ समझना है वो मेरी स्पीड पे चल सकते हैं, सो दैट एवरीबॉडी इज इक्वली बेनिफिटेड। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। फॉस्फोरिक एसिड, फॉर्मूला है H3PO4। पहला कॉन्सेप्ट, अगर एक एसिड है तो 8 आयन बनेगा। आप पहले सबसे पहले मुझे आयन का नाम बताइए। नाम क्या बनेगा? फॉस्फेट आयन। अब फॉर्मूला बताइए। 3 हाइड्रोजन एटम्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? PO4 आया, करेक्ट। और 3 हाइड्रोजन आपने हटाए हैं, सो 3 नेगेटिव। अंडरस्टूड? समझ में आया? बेसिक है। अब हमने अभी आज क्या किया? अभी तक 3 पढ़े, सो लेट्स राइट दैट। हमने 3 आयन्स पढ़े हैं। सबसे पहला आयन क्या है? नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन का फॉर्मूला है NO3-। दूसरा हमने पढ़ा है फॉस्फेट आयन, उसका फॉर्मूला है PO4-3-। अगला हमने पढ़ा है सल्फेट आयन, उसका फॉर्मूला क्या है? SO4-2-। स्टूडेंट्स, ये जब सारे फॉर्मूले आपको एक शीट पे एक साथ लिख के दे देंगे ना, आपको नहीं समझ में आएगा कि कैसे याद करें। सो प्लीज कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। ये सोचिए कि नाम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कहां से निकल पाएगा। एंड एज यू प्रैक्टिस अलोंग ये चीजें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। आप नाइट्रेट आयन देखेंगे, आपको पता होगा इट इज NO3-1। ओके, सो इट विल इवेंचुअली कम टू यू। नाउ लेट्स मूव अहेड। सो अभी अभी हमने एक चीज पढ़ी है, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, ताकि आपको बाय द एंड ऑफ द वीडियो याद हो जाए, आपको रिवाइज ना करना पड़े, ठीक है। अच्छे से समझ के करिए। ओके, लेट्स रिपीट। हमने पढ़ा अभी कि अगर हमारे पास एक एसिड है, तो एक एसिड हमें देता है 8 आयन। अगर हम उसमें से नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस कर दें, सो माइनस हाइड्रोजन, उतना आप नेगेटिव चार्ज लगा दें। ये हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है। लेट्स मूव टू द सेकेंड कॉन्सेप्ट फॉर टुडे। सेकेंड कॉन्सेप्ट है अस एसिड, OUS, अस एसिड। अगर हमारे पास अस एसिड आता है तो वो हमें देता है आइट आयन, ITE, आइट आयन। और सेम कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस करेंगे और नेगेटिव चार्ज के साथ टॉप पे बिठा देंगे। आई बात समझ? लेट्स ट्राई आउट द क्वेश्चंस। IS एसिड, सॉरी नॉट IS, अस एसिड, OUS, अस एसिड। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप ट्राई करें, जिन्हें ट्राई करना है ट्राई कर सकते हैं। आई हैव नाइट्रस एसिड, ठीक है, नाइट्रस, OUS। फॉर्मूला आपको बताती हूँ। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला है HNO2, ठीक है, HNO2। अब सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अस एसिड है तो कौन सा आयन बनेगा? आइट आयन बनेगा। सो नाम लिखते हैं सबसे पहले, नाइट्राइट आयन, ठीक है। फॉर्मूला कैसे बनेगा? माइनस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड पुट दैट ऑन द टॉप, सो NO2-1। आई बात समझ में? तो अगर आपको नाइट्राइट आयन पूछा जाए डायरेक्ट नाइट्रस एसिड से, तो आप फॉर्मूला बता सकते हैं और आप नाम भी बता सकते हैं। NO2- आएगा और नाइट्राइट आयन उसका नाम होगा। नाउ स्टूडेंट्स हु फील अ लिटिल बिट कॉन्फिडेंट, लेट्स ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू कैन गो अहेड एंड ट्राई विथ सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO3, H2SO3। जिन स्टूडेंट्स को मेरे साथ करना है, लेट्स डू इट टुगेदर।
हमारे पास आया अस एसिड। अस एसिड हमें क्या देगा? प्लीज रिपीट आफ्टर मी। अस एसिड हमें क्या देगा? वो हमें देगा 8 आयन। तो नाम क्या हुआ हमारे आयन का? सल्फाइड आयन। और फॉर्मूला क्या हुआ हमारा? क्या करना है हमें? हाइड्रोजन माइनस करने हैं। कितने हाइड्रोजन माइनस करने हैं? 2 हाइड्रोजन माइनस करने हैं। तो हमारे पास क्या बचा? SO3 2 माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए। आगे जाके क्वेश्चंस में आप ये मत कहना कि अब ये क्या हो गया। ठीक है, सब कुछ कॉन्सेप्ट सीक्वेंस में है, ध्यान से समझिएगा। सल्फ्यूरस एसिड हो गया। लेट्स मूव टू फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एसिड फॉर्मूला हो गया H3PO3। ठीक है, नाम क्या होगा हमारे आयन का? सबसे पहले नाम पे फोकस करिए। नाम होगा अस एसिड, मतलब 8 आयन। फॉस्फाइड आयन। ठीक है, और हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? कितने हाइड्रोजन हैं? 3 हाइड्रोजन हैं। लेट्स सब्ट्रैक्ट दैट, सो वील बी लेफ्ट विद PO3 3 माइनस। तो ये हो गया हमारा 8 आयन। आई बात समझ में? तो अब हमने इस वाले कैटेगरी में जो हमने अस एसिड करा, इस कैटेगरी में हमने 3 आयंस पढ़े हैं। वो 3 आयंस के फॉर्मूला लिखते हैं, आप रिपीट करिएगा, आंसर बताइएगा। सो दैट इज नाइट्राइट आयन। वो क्या था? NO2 माइनस। हमने पढ़ा फॉस्फाइट आयन, PO3 3 माइनस, और हमने पढ़ा सल्फाइट आयन, दैट वाज SO3 2 माइनस। आई बात समझ में? ये 3 आयन्स अब हमने करे। तो अब तक हमने टोटल 6 आयन्स पढ़े हैं, दैट वाज नाइट्रेट, फॉस्फेट, सल्फेट, नाइट्राइट, फॉस्फाइट, सल्फाइट। ठीक है, धीरे धीरे नंबर ऑफ आयन्स बढ़ते चले जाएंगे, तो ध्यान से समझते चलिए। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को, हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़े हमने? पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक एसिड है तो वो हमें 8 आयन देता है। अगर हमारे पास अस एसिड है वो हमें 8 आयन देता है। और इन दोनों को ही द चार्ज जो हम निकालेंगे वो हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आपस में कंबाइन करके देखते हैं। सो लेट मी राइट दैट हियर। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई हैव सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड है, फॉर्मूला है H2SO4। क्या बनेगा हमारा आयन? SO4 2 माइनस। ठीक है, नाम क्या होगा? सल्फेट। अगर मैं इसे शॉर्ट में यहां लिखूं तो टेक्निकली हमारे पास एक एसिड था, एक एसिड से मेरे पास 8 आयन आ गया। और आया कैसे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस करके आया। आई बात समझ में? अब अगर मेरे पास अस एसिड है तो वो मुझे दे रहा है 8 आयन, और वो भी हाइड्रोजन माइनस करके आ रहा है। करेक्ट। अब सल्फ्यूरस एसिड का हमारा फॉर्मूला क्या था? लेट मी राइट इट हियर, H2SO3। और सल्फाइड आयन जब मैंने उसमें से हाइड्रोजन माइनस करे थे, दैट वाज SO3 2 माइनस, दैट वाज गिविंग मी सल्फाइड आयन। अब हम ये देखते हैं कि इनमें आपस में क्या रिलेशन है, क्योंकि एग्जाम में स्पेसिफिकली जरूरी नहीं है कि वो कहे सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट आयन बनाओ। दे कैन ऑल्सो आस्क कि सल्फ्यूरिक एसिड का आपको फॉर्मूला दे रखा है, दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सल्फाइड आयन। अब सल्फ्यूरिक एसिड के केस में आपको सारे याद होंगे, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, बट एग्जाम में फिर ये नहीं आएगा। एग्जाम में डिफिकल्ट आएगा, एक डिफिकल्ट एसिड आएगा और उसमें वो कुछ भी पूछ सकते हैं। सो प्लीज पे अटेंशन एंड अंडरस्टैंड जो कॉन्सेप्ट चल रहा है। अगर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है और आपको सल्फ्यूरस एसिड बनाना है, अगर आप इस पे ध्यान दें तो सिर्फ फर्क एक ऑक्सीजन का है। किसका फर्क है? सिर्फ एक ऑक्सीजन का। सो व्हाट वी विल डू इज we'll subtract one oxygen and we'll get sulfurous acid। या फिर अगर सल्फ्यूरस एसिड आपको दिया है,
So you add one oxygen and you get sulfuric acid. ठीक है, तो क्या समझ में आया? अगर एक एसिड है, ऑक्सीजन सब्ट्रैक्ट करिए, अस एसिड आ जाएगा. सेम थिंग विल हैपन विद द आयंस आल्सो. ठीक है, अगर आपके पास 8 आयन है, आप उसमें से ऑक्सीजन सब्ट्रैक्ट करिए, आपके पास 8 आयन आ जाएगा. और अगर आपके पास 8 आयन है तो आप उसमें ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए और 8 आयन आ जाएगा. वेरी सिंपल, करेक्ट? नाउ लेट्स ट्राई इट आउट. एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या किया. हमने ये पढ़ा अभी तक कि अगर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, मैंने हाइड्रोजन माइनस करे तो मेरे पास सल्फेट आयन आ गया. बिकॉज सल्फ्यूरिक था तो 8 आयन आएगा. सो इसका फॉर्मूला था मेरा SO4 2-. करेक्ट? अगर मेरे पास अब मैं पूरा सर्कल घुमाती हूँ. ठीक है, ये था आपके पास एक एसिड. एक एसिड से आप आए 8 आयन पे. अब 8 आयन से अगर आपने ऑक्सीजन सब्ट्रैक्ट किया, यू विल गेट SO3 2-. ये क्या था हमारा? 8 आयन. अब 8 आयन में अगर आप अपने हाइड्रोजन ऐड कर दें तो यू विल गेट H2SO3. तो ये क्या आ गया आपका? अस एसिड. और इसमें अगर आप ऑक्सीजन ऐड कर दें तो आप वापस आ जाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड पे. स्टूडेंट्स, आपको ये चीजें इतनी बार प्रैक्टिस करनी है, इतनी बार रिपीट करनी है अपने साथ कि आपको ये सब चीजें नेचुरली समझ में आए. आपको हर बार चार्ट नहीं बनाने को टाइम मिलेगा. एंड दिस विल बी पार्ट ऑफ बिगर क्वेश्चंस. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल. ओके स्टूडेंट्स, सो आप जब चार्ट अपने नोट्स में बनाएंगे तो आप उस चार्ट को कैसे बनाएंगे सो दैट इट इज वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प फॉर योर रिविजन ड्यूरिंग द एग्जाम्स. सो आप उस चार्ट को इस तरीके से बनाएंगे. सो लेट मी मेक द चार्ट क्विकली. So you'll say that you have ic acid, subtract hydrogen, you get 8 ion. You add back hydrogen, you get ic acid back. Now from ic acid, you subtract an oxygen, you get us acid. In us acid, you add oxygen, you get ic acid back. us acid में अगर आप हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, you get 8 ion. और अगर 8 आयन में आप हाइड्रोजन वापस ऐड करते हैं, यू गेट अस एसिड. सिमिलरली अगर आप 8 आयन में ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो आपको 8 आयन आएगा. और 8 आयन से ऑक्सीजन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आयन आएगा. दिस इज द चार्ट जो आपके दिमाग में परमानेंटली फिक्स हो जाना चाहिए फॉर योर एग्जामिनेशंस. एंड दिस विल बी वेरी हेल्पफुल इवन फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. नाउ लेट मी गिव यू अ फ्यू क्वेश्चंस टू ट्राई आउट. जिस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं. पहला क्वेश्चन, यू हैव पर क्लोरिक एसिड. आप मुझे आयन का फॉर्मूला एंड आयन का नाम बताएंगे. और पर क्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HClO4. सो गिव इट अ ट्राई. पर क्लोरिक एसिड है, यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ द आयन and the formula of the ion. So the students who have tried it, let's quickly move ahead. जो अभी भी ट्राई कर रहे हैं, you can pause it and then आप resume कर सकते हैं. So when you have perchloric, एक की आवाज आ गई, very simple, 8 आयन बनेगा. So सबसे पहले हम नाम बनाएंगे. आयन का नाम क्या बनेगा? परक्लोरेट. परक्लोरेट आयन. और फॉर्मूला क्या होगा? कितने हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन -1 हाइड्रोजन. फॉर्मूला बनेगा ClO4-. ठीक है, दैट वुड बी परक्लोरेट आयन. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज क्लोरेट आयन. आपको दे रखा है, ठीक है, क्लोरेट आयन का फॉर्मूला आपको दे रखा है ClO3-. ठीक है, आपको मुझे बताना है द फॉर्मूला ऑफ द एसिड as well as you have, no, just tell me the formula of chlorite ion. इसमें आप मुझे 8 आयन कौन सा ले रहे हैं हम? क्लोराइट आयन. आप मुझे क्लोराइट आयन का फॉर्मूला बताएं. सो जब क्लोराइट आयन का फॉर्मूला निकालना होगा तो आप क्या करेंगे? क्लोरेट से क्लोराइट आना है तो आप एक ऑक्सीजन सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो सब्ट्रैक्ट 1 ऑक्सीजन और आपके पास आ गया नाम क्या है? क्लोराइट आयन.
और फॉर्मूला क्या है, ClO2 माइनस। आई बात समझ में? इसे ढंग से लिखते हैं, ClO2 माइनस। आई बात समझ? इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे दैट दे विल गिव यू क्लोरेट आयन एंड आस्क यू द फॉर्मूला फॉर क्लोराइट आयन। तो आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो आप नहीं निकाल पाएंगे। या दूसरा ऑप्शन है आप पूरा चार्ट रट लें, पर उससे फायदा नहीं होगा क्योंकि आपको अभी तो याद रहेगा, पर व्हेन यू आर इन 12th ग्रेड गोइंग फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इतनी इंफॉर्मेशन रिटेन करना मुश्किल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ट्राई करिए। अब आपको मैं दे रही हूं क्लोरेट आयन एंड आपको एसिड फाइंड करना है। अब लेट्स ट्राई। आपको साउंड कौन सी आ रही है, एट आयन, ATE। एट आयन कौन सा देता है, एक एसिड देता है। तो सबसे पहले एसिड का नाम क्या हो गया, नाम हो गया हमारा क्लोरिक एसिड। क्लोरेट आयन तो नाम हो गया क्लोरिक एसिड। सबसे पहले नाम पे ध्यान दीजिएगा। और क्लोरेट आयन का फॉर्मूला क्या है, ClO3 माइनस। यहां पे मैंने आपको ऊपर दिया ही था ClO3 माइनस। अब इसको आपको एसिड बनाना है। अब एसिड बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे। कितने हाइड्रोजन, जितना ऊपर नेगेटिव चार्ज है उतने हाइड्रोजन। एक नेगेटिव चार्ज है तो एक हाइड्रोजन, सो +1 हाइड्रोजन। सो आपका फॉर्मूला बन जाएगा HClO3। आगे बात समझ में, दैट इज योर क्लोरिक एसिड। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोराइड आयन। अब आप मुझे क्लोराइड आयन से एसिड बना के दिखाइए। क्लोराइड आयन का मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, अगर आपको नहीं पता तो आप क्लोराइड आयन से पहले क्लोराइड आयन का फॉर्मूला निकाल लीजिए। सो दैट विल बी ClO2 माइनस, ClO2 माइनस। अब आपको इससे एसिड बनाना है। सो क्लोराइड से कौन सा एसिड बनेगा, क्लोरस एसिड बनेगा। आइट से अस, सो क्लोरस एसिड। ठीक है, बोलते चलिएगा स्टूडेंट्स, प्लीज बोलते चलिएगा, दैट विल हेल्प यू मेमोराइज दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो क्लोरस एसिड, कितना नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, एक नेगेटिव चार्ज है, तो कितने हाइड्रोजन ऐड करेंगे, एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे। सो +1 हाइड्रोजन। सो अब क्या बनेगा, HClO2। तो आपका फॉर्मूला आ गया क्लोरस एसिड का, HClO2, क्लोरस एसिड। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, अभी हमने लेट्स सी। अब अगर फॉर एग्जांपल लेट्स पॉइंट आउट हमने अभी आज क्या क्या किया है। सो हमने क्या किया है, हमने किया है अभी अभी क्वेश्चंस में क्लोरेट, सो दैट वाज Cl, क्लोरेट आयन। लेट मी राइट द आयन फर्स्ट। सो क्लोरेट आयन, सो दैट विल गिव यू ClO4 माइनस। तो इससे क्या बन रहा था हमारा, पर क्लोरिक एसिड, और पर क्लोरिक एसिड का फॉर्मूला था HClO4, करेक्ट। और हमने पढ़ा क्लोरेट आयन, इसका फॉर्मूला था ClO3 माइनस, और इसका एसिड था क्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला था HClO3 माइनस, नॉट माइनस, इट्स एन एसिड। फिर हमने पढ़ा क्लोराइड। क्लोराइड आयन है ClO2 माइनस, और इसका फॉर्मूला एसिड बनेगा क्लोरस एसिड जिसका फॉर्मूला आएगा HClO2। तो स्टूडेंट्स, आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट से ये समझ में आना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल इन चारों में से आपको कोई भी एक दिया जाए, क्लोरेट आयन, क्लोराइड आयन, क्लोरिक एसिड और क्लोरस एसिड, सो कुछ भी एक दी जाएगी चीज, तो आप इन बाकी तीनों को फिगर आउट कर सकते हैं। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट हियर। ओके, so let's quickly revise what we have done today. This is it that we are going to do today. So what have we done today? We have done very basic things. एक एसिड है तो 8 आयन बनेगा, और हमारे पास चार्ज कैसे आएगा, माइनस हाइड्रोजन। जितने हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट करेंगे उतना नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर हम अपने एक एसिड में ऑक्सीजन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास अस एसिड आएगा, और अगर हम अपने अस एसिड में से नंबर ऑफ हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आयन बनेगा। 8 आयन में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आयन बनेगा। आई बात समझ में? सो दिस इज व्हाट वी हैव कवर्ड फॉर टुडे।
In the next session, we'll be working on nitride, IDE, nitride, phosphide and sulfide. नेक्स्ट सेशन में हम IDE, आइड आयन के ऊपर बात करेंगे. ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो दिस वाज इट फॉर टुडेज सेशन. कॉन्सेप्ट बहुत छोटा पढ़ा है हमने, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ा है. जब आप आगे आगे पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि कितने ज्यादा एसिड्स और कितने ज्यादा आयंस हैं, पर अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है, इट विल स्टिक विद यू फॉर एवर. सो मेक श्योर कि आप छोटे टॉपिक्स को लाइटली ना लें. एज वी आर डूइंग अलोंग, इतना 20 मिनट की वीडियो में प्रॉपरली समझ लें उसे, उसके बाद आपको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है. मेक प्रॉपर नोट्स एज वी गो अलोंग. कोई टॉपिक को मिस मत करना, इट्स हाईली इंपॉर्टेंट. आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इसमें. बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, पर यस, इट विल हेल्प यू गेन मार्क्स. सो स्टूडेंट्स, दिस इज इट. In the next session, we'll be working on iron, IDE, and please make sure that you are sharing the channel with your friends and help us grow further. So that is it, and we will catch up in the next session.